Hello students, how is your study going? I think you are preparing your best. I am Dr. Suman Sharma. Thanks for your keen interest showing in the lectures delivered by me. Students, we are learning reduction processes since few lectures. Today, this lecture was also concerned with reduction of nitro group. You are very much familiar with the nitro groups. So let us start first with certain elementary knowledge about nitro group. Then we will come how the reduction of nitro group performs. First is nitro compound. Organic compounds containing nitrogen can be broadly classified into two groups. Compounds containing nitro functional group NO2, compounds containing amine functional group NH2 and their derivatives, right? In this nitro compounds are primarily source of organic compounds with functional group NO2 to start the synthesis of many other important compounds, right? The NO2 group attached with organic chain is called as nitro functional group. All the compounds containing the nitro functional group are called as organic nitro compounds, right? And they are classified as aliphatic nitro compounds or aromatic nitro compounds, right? The NO2 group is called the nitro group, right? It is electron withdrawing group due to its inductive effect as well as resonance effect. Here is the resonating structure of NO2 group, right? Our first type of nitro compounds are aliphatic nitro compounds. If the nitro functional group is attached with aliphatic carbon chain, it is called as aliphatic nitro compound, right? यदि NO2 ग्रुप किसी भी एलिफेटिक कार्बन चेन से जुड़ा होता है तो उस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं. दे आर वीकली एसिडिक ड्यू टू देयर एजीनाइट्रो फॉर्म and they are soluble in alkalines and can undergo condensation reaction with aldehydes, right? Here is the formula of nitromethane. CH3NO2 is nitromethane, right? Come to the next slide. Aliphatic nitro compound can be reduced to hydroxyl amine by treating with diborane, right? जो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोक्साइल अमीन के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं यदि हम डाइबोरेन कैटलिस्ट काम में लेते हैं, राइट? एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू ऑक्सीम्स यूजिंग स्टेनस क्लोराइड. यदि हम एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड को ऑक्सीम्स से रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीम कैटलिस्ट यदि हम स्टेनस क्लोराइड जो है कैटलिस्ट काम में लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीम्स का फॉर्मेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इस रिडक्शन प्रोसेस के अंदर नाइट्रो ग्रुप के कि यदि कैटलिस्ट हम चेंज करते जाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो भी हमको डिफरेंट मिलते हैं. यहाँ पर हमने डाइबोरेन लिया था तो हमको हाइड्रोक्साइल अमीन मिला. यहाँ पर हमने स्टेनस क्लोराइड लिया तो यहाँ पर हमको ऑक्सीम्स मिलते हैं, राइट? फिर आता है रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है? एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स विद द नाइट्रो ग्रुप
on a tertiary carbon, right? Tertiary carbon are reduced to amines with aluminium amalgam or iron or ACOH or catalytically, right? Here is the reaction, right? ये है आपका टर्शरी जो है यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम एल्यूमिनियम अमलगम का जो है कैटलिस्ट लेते हैं, उसको हीट करते हैं तो यहाँ पर एमीन्स बनती हैं, राइट। यहाँ पर यदि हम सेम जो है वो रिएक्टेंट लेते हुए इस रिएक्शन को आयरन ACOH के साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो भी हमको एमीन मिलती है और ये 74% मिलती है। फर्स्ट जो केस था इसके अंदर 70% यील्ड ऑफ अमीन जो है मिलता है और यहाँ पर हमको 74% जो है अमीन मिलती है। कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट जो है उसका जो है रिडक्शन प्रोसेस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर वेरी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। जनरली प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू एल्डोक्सिन्स, राइट। प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं उनका रिडक्शन होने पर एल्डोक्सिन्स बनती हैं और सेकेंडरी जो है नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन होने पर कीटोक्सिन्स बनते हैं, राइट, बाय मेटल salts such as stannous chloride or chromous chloride, right. The same result is also obtained by hydrogenation in the presence of catalyst. सेम जो प्रोडक्ट है वो हमको हाइड्रोजनेशन पर भी मिलता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। यहाँ पर ये हमने रिएक्शन दे रखी है, इट्स अ नाइट्रो कंपाउंड, इट्स रिएक्ट विद SnCl2 एंड HCl, राइट। इसको हीट किया जाता है, ये कैटलिस्ट यहाँ पर हम काम में लेते हैं तो यहाँ पर एल्डोक्सिन्स बनते हैं, राइट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जब हमने रिएक्टेंट्स जो है वो बदल दिया तो भी हम यहाँ पर ये जो है इसका जो है वो ऑक्सीम्स, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीम्स का फॉर्मेशन कीटोक्सिम्स बनते हैं, राइट। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स ऑन कंप्लीट रिडक्शन गिव प्राइमरी एमीन्स। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का जब पूरा रिडक्शन प्रोसेस हो जाता है तो हमको प्राइमरी एमीन्स मिलते हैं, बट दिस रिएक्शन इज ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंट बिकॉज द अमीनो ग्रुप इज ईजीली इंट्रोड्यूस्ड इन ए नंबर ऑफ अदर वेज, राइट। Lithium aluminum hydride and catalytic reduction with a transition metal catalyst are suitable method for the production of primary amine, right. Here is the reaction, ठीक है। यहाँ पर हमने ये it's a nitro organic nitro compound, it's react with lithium aluminum hydride and we get amines, right. Here is the dinitro compound, right, and we get diamines, right. यहाँ पर भी हम देखते हैं दिस NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2। यहाँ पर हमने जो रिएक्टेंट है वो क्या काम में लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। यहाँ पर हमने क्या काम में लिया, H2PTO और एसिटिक एसिड, और यहाँ पर जो है हमने कैटलिस्ट काम में लिया है H2PD एंड carbon in presence of methanol and we get amines, right. This NO2 is converted into NH2 group, right. फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हमने कैटलिस्ट जो है वो जिंक और ACOH काम लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी गेट NH2 ग्रुप यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज रिड्यूस्ड इन NH2 ग्रुप, राइट। हियर जो है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ZnACOH, राइट। और यहाँ पर ये जो है हमने कार्बन पे यहाँ पे इट्स अ कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पर हमने जो है ना हाइड्रोक्साइल अमीन लेते हैं तो वी गेट दिस NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप, राइट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे NO2 ग्रुप का जो रिडक्शन है वो अमीन के अंदर होता है, राइट। तो ये क्या है, एलिफेटिक अमीन्स का रिडक्शन हमने देखा है, राइट। फिर यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म हम जो है वो समझ सकते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स टू अमीन्स, और हियर इज़ द मैकेनिज़्म, राइट। यहाँ पर RNO2 इज़ कन्वर्टेड इनटू RNH2, राइट। इनिशियली द नाइट्रो ग्रुप इज़ रिड्यूस्ड टू द नाइट्रोसो ग्रुप।
सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें जो नाइट्रो ग्रुप है उसका कन्वर्जन नाइट्रोसो ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H प्लस माइनस H2O, यहाँ पर नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म होता है। द इनिशियल स्टेप इज़ फॉलोड बाय द reductive addition of 2 hydrogen atoms to form the hydroxyl amine, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोक्साइल अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है, एन सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्साइल अमीन, इट्स अ नाइट्रोसो कंपाउंड। यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स का एडिशन होता है और यहाँ पर एन सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्साइल अमीन बन जाता है, राइट। द लास्ट स्टेप इज़ अगेन अ रिडक्शन। लास्ट स्टेप क्या होता है, वापस से रिडक्शन का होता है। वाटर इज़ एलिमिनेटेड, वाटर निकल जाता है, एंड द अमीन इज़ आइसोलेटेड, और अमीन जो है वो बन जाता है, अमीन को हम प्राप्त कर लेते हैं। इट्स द लास्ट स्टेप, राइट। तो हियर इज़ द टोटल जो है मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स टू प्राइमरी अमीन, राइट। The reduction of nitro group with metal in acidic solution cannot be stopped at either the nitroso or hydroxyl amine stage, right। जो रिडक्शन जो प्रोसेस है नाइट्रो ग्रुप का मेटल विद यदि मेटल के साथ में इन एसिडिक सॉल्यूशन किया जाता है तो हम उसका जो रिडक्शन प्रोसेस है उसको हम नाइट्रोसो या हाइड्रोक्साइल अमीन स्टेज पर नहीं रोक सकते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ द अमीन, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसका वो अमीन ही मिलता है, आइसोलेटेड एज सॉल्ट ऑफ द एसिड यूज्ड, राइट। यदि इस रिएक्शन कंडीशन में हम रिडक्शन प्रोसेस करते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमको अमीन ही मिलता है, राइट। तो ये अभी हमने जो है एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन डिस्कस किया है, राइट। अब आते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। इफ़ द नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच्ड विद बेंजीन रिंग इट इज़ कॉल्ड एज एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, राइट। यदि कोई भी नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का नाम देते हैं। ऑल एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर येलो कलर लिक्विड्स विच में चेंज टू डार्क ब्राउन कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अधिकतर जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो पीले रंग के होते हैं लिक्विड, और ये जो है वो ऑक्सीडेशन पर इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है, राइट। फिर है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रोबेंजीन कैन बी रिड्यूस टू एनिलीन बाय टिन HCl, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, जब इसका जो रिडक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ टिन और HCl किया जाता है तो हमको एनिलीन मिलता है। ऑन ट्रीटिंग विद रेने निकल नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस टू फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन, राइट। यदि हम यहाँ पर कैटलिस्ट को चेंज कर देते हैं, रेने निकल की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन प्रोसीड की जाती है तो रिडक्शन के बाद में हमको फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन मिलता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या रिडक्शन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज़ रिड्यूस्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। यदि नाइट्रोबेंजीन जो है हम एज ए रिएक्टेंट काम में लेते हैं तो हमको उसके बहुत जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है आफ्टर रिडक्शन मिलते हैं, और वो जो रिडक्शन है वो किस पर बेस्ड होता है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया है, राइट। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रो ग्रुप्स प्रोसीड इन द फॉलोइंग स्टेजेस, ठीक है। फर्स्ट इट हियर इज़ द नाइट्रो बेंजीन, जब इसका रिडक्शन किया जाता है तो नाइट्रोसो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। फिर फर्दर उसका रिडक्शन होता है तो फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन बनती है, और फिर उसका वापस से जब हम रिडक्शन करते हैं तो फाइनली हमको एनिलीन मिलती है, राइट। तो पहला जो रिडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर हमको नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। फिर है रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम विद आयरन और स्टीम, द नाइट्रो ग्रुप इज़ रिड्यूस टू नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। यदि यहाँ पर हम आयरन और स्टीम जो है इस रिएक्शन की जो है कैटलिस्ट के तरह काम में लेते हैं तो हमको नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोसो बेंजीन मिलता है, राइट। ऑन रिडक्शन विद जिंक
टिन एंड NH4Cl और CaCl2 इन न्यूट्रल मीडियम। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मीडियम है दैट इज़ न्यूट्रल, और कैटलिस्ट जो है वो हम क्या काम में लेते हैं, जिंक, टिन, NH4Cl और कैल्शियम क्लोराइड। इट गेट्स रिड्यूस टू फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन। तो हमको प्रोडक्ट जो है वो फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन मिलता है। यहाँ पर हमने इसको ये रिएक्शन देकर शो कर रखा है। इट्स अ नाइट्रोबेंजीन, 2 moles of zinc and 4 moles of NH4Cl and we get phenyl hydroxyl amine, right? 2ZnCl2 अलग हो जाता है, अमोनिया एंड वाटर अलग हो जाता है, राइट? फिर थर्ड है रिडक्शन इन एल्केलाइन मीडियम। ये तो हमने देखा कि न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो है वो रिडक्शन प्रोसेस हुआ था। अब यदि रिडक्शन प्रोसेस को एल्केलाइन मीडिया के अंदर करते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एल्केलाइन मीडियम, फर्स्ट फॉर्म नाइट्रोसोबेंजीन, राइट? फर्स्ट जो है फॉर्मेशन नाइट्रोसोबेंजीन एंड फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन, ठीक है? These react with each other in alkaline medium to first form एजोक्सीबेंजीन, ठीक है? एजोक्सीबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, देन एजोबेंजीन एंड फाइनली हाइड्रेजोबेंजीन, राइट? ये हमने इसको रिएक्शन देकर शो कर रखा है। एल्केलाइन मीडियम के अंदर फर्स्ट जो है वो एजोबेंजीन फर्स्ट जो है एजोक्सीबेंजीन, देन एजोबेंजीन और फाइनली जो है हाइड्रेजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? यहाँ पर जो है ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो मीडियम है वो हम एल्केलाइन लेते हैं, राइट? फिर आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। यहाँ पर हम क्या है, मीडियम को एसिडिक रखते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन फर्स्ट फॉर्म्स फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन, राइट, which in acidic solution rearranged by migration of OH group to para position to form para aminophenol, राइट? इलेक्ट्रोलिटिक जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो हम एसिडिक मीडिया के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको हाइड्रोक्साइल अमीन मिलता है और फिर फाइनली ये जो OH है ये रीअरेंज होकर के या माइग्रेट करके पैरा पोजीशन पर चला जाता है और हमको पैरा एमिनोफिनॉल जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, राइट? ये यहाँ पर हमने रिएक्शन देकर शो कर रखा है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो मीडिया है वो एसिडिक है, राइट? सेकंड क्या है, इन स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम, यहाँ पर था एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फर्स्ट फॉर्म्स हाइड्रेजोबेंजीन, ठीक है ना? यहाँ पर हाइड्रेजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है यदि हमने एल्कलाइन मीडिया लिया है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पर, राइट? विच रीअरेंज टू फॉर्म बेंजीडीन यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज, ठीक है ना? फाइनली जो हमको क्या मिलता है, बेंजीडीन मिलता है जिसको कि हम एजोडाइज के रूप में काम में लेते हैं। एजोडाइज जो है वो किससे बनती है, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट से जो हमको जो है वो बेंजीडीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ क्लीवेज ऑफ N-N bond in hydrazobenzene with the migration of phenyl group to para position, right? फिनाइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर आ जाता है और फाइनली हमको जो है वो बेंजीडीन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, राइट? और ये जो है इसको हम एजोडाई के रूप में भी काम में लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलिटिक जो रिडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम के अंदर हो रहा है। तो राइट, अब कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है आपका सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रिड्यूसिबल ग्रुप लाइक CH डबल बॉन्ड CH2 और CHO एक्सेट्रा ऑन द रिंग। यहाँ पे यदि CH डबल बॉन्ड CH2 है या यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है और जब हम जो है डिफरेंट कैटलिस्ट काम में लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिलते हैं और ये क्या है, एक जो है सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस है। द नाइट्रो ग्रुप may be selectively reduced to amino group. This NO2 is converted into NH2 group using alkaline FeSO4,
ठीक है। यहाँ पर हमने ये जो है नाइट्रो जो कंपाउंड है उसके अंदर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये लिया है इस ऑर्थो नाइट्रो स्टायरीन, राइट। It's react with alkaline FeSO4 and we get orthoaminostyrene. This NO2 is converted into NH2, right. सेकेंड जो हमने एग्जांपल ले रखा है वो क्या है, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। यहाँ पर इससे CHO ग्रुप, इट्स एल्डिहाइड ग्रुप एंड कैटलिस्ट आर alkaline FeSO4 और SnCl2 या HCl and we get para amino benzaldehyde. This NO2 is converted into NH2, ठीक है। पैरा एमिनो बेंजेल्डिहाइड मिलता है और ये जो प्रोसेस है ये सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस ऑफ नाइट्रो ग्रुप कहलाता है, राइट। अब आता है लास्ट जो है रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स लाइक NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। ये जो है जनरल जो है हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इनको काम में लेते हैं। जितने भी अभी तक अपन ने रिडक्शन प्रोसेसेस पढ़े हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस नाइट्रोबेंजीन टू एजोबेंजीन वाइल NaBH4 रिड्यूसेस इट टू एनिलीन, राइट। यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। इसकी जब रिएक्शन जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवाते हैं तो हमको एजोबेंजीन मिलती है। और सिमिलर जो है हम जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये जो है आज हमने टोटल नाइट्रो ग्रुप का जो है रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हम जो है डिफरेंट जो है वो कैटलिस्ट जो है काम में लेते हैं और रिएक्शन कंडीशन जो है उसको भी हम जो है फॉलो करते हैं तो हमें डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो रिएक्शन कंडीशन और कैटलिस्ट जो है दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के अंदर, राइट। Thanks dear students.